આચાર્ય શ્રી કૈલાસ સાગર શ્રી જ્ઞાન મંદિર આવેલું છે। આ જ્ઞાન મંદિરની સ્થાપના રાષ્ટ્ર સંત પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી પદ્મસાગર શ્રી મહારાજ સાહેબ દ્વારા કરવામાં આવેલી છે કે જે મધ્ય વિરાજમાન છે પદ્મસાગર શ્રી મહારાજ સાહેબનો તેઓ હાલમાં કોબા ખાતે વિરાજમાન બી છે। તેઓએ છેલ્લા 40-45 વર્ષની સઘન મહેનત કરીને અમૂલ્ય સાહિત્ય અને ધરોહર કલાકૃતિઓનું સંકલન અત્રે કરેલ છે। લગભગ હસ્તપ્રતો જે હાથથી લખાયેલું સાહિત્ય 200, 500, 700, 800 વર્ષ પહેલાંનું જે ઋષિમુનિઓ દ્વારા અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રેમીઓ દ્વારા લખાયેલું સાહિત્ય અહીંયા સંગ્રહિત કરેલું છે। શિલાલેખો છે, પ્રાચીન શિલ્પ સ્થાપત્ય છે। આમાં હસ્તપ્રતોમાં જોવા જઈએ તો લગભગ 3 લાખથી અધિક હસ્તપ્રતો છે। વિશ્વની અંદર હસ્તપ્રત માટે સૌથી વધુ કલેક્શન ધરાવતું સ્થાન હોય તો આ કૈલાસ સાગર શ્રી જ્ઞાન મંદિર છે। નેશનલ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ મિશને પણ એને માન્યતા આપી છે કે સૌથી વધુમાં વધુ હસ્તપ્રતો ધરાવનાર જ્ઞાન ભંડાર તરીકે એ ગ્રેડમાં કૈલાસ સાગર શ્રી જ્ઞાન મંદિરને મૂક્યું છે। પછી સૌથી વધુ મોટા રોલ સ્ક્રોલ અને સૌથી વધુ સંખ્યામાં રોલ સ્ક્રોલ એના માટે પણ ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં કોબાને સ્થાન મળેલું છે। અહીંયા 3.5 લાખથી અધિક પ્રિન્ટેડ પુસ્તકો છે, 3000થી વધુ મેગેઝિનના અંકો છે, તાડપત્રીય ગ્રંથો 6000થી વધુ છે। તાડપત્રનો ઇતિહાસ કહેવાય છે કે જે કાગળનો આવિષ્કાર થયો એની પહેલાંનો તાડપત્ર હોય છે। એ તાડપત્ર ઉતરીને લખવામાં આવતું હતું અને એમાં શાહી ભરી અને પછી એ રીડેબલ થતી હતી। તાડપત્રીય ગ્રંથો પણ અહીંયા અત્રે અમે દર્શાવ્યા છે જ્ઞાન પંચમી નિમિત્તે। તો જેમ કે આ એક તાડપત્રીય ગ્રંથ છે, પછી અગરપત્ર, ભોજપત્ર, હસ્તલિખિત સાહિત્ય, આગમ ગ્રંથો, પ્રિન્ટેડ પુસ્તકો, એનું કેટલું કલેક્શન અમે લોકોએ જ્ઞાન પંચમીના દિવસે જ્ઞાન પ્રેમીઓની પૂજા માટે રાખેલું છે। આ જ્ઞાન ભંડારની જે સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ અમારા ગુરુ ભગવંતનો એ ઉદ્દેશ અને આશય રહ્યો છે કે કોઈ પણ શોધાર્થી, પીએચડી, એમફિલ કરનાર વ્યક્તિ હોય, સાધુ સાધ્વી જેવા સંશોધક કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તેને તમામ સુવિધા પૂરી પાડવી। અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની સંકુચિતતા રાખવામાં આવતી નથી। તમારી ક્ષમતા હોવી જોઈએ કે તમે કેટલી હસ્તપ્રતો ઉપર સંશોધન કરી શકો છો। 10, 20, 50, 500, 1000 કાર્ય કરનારા હોવા જોઈએ। અહીંયાથી સહયોગ ભરપૂર આપવામાં આવે છે। સાહિત્યની ઉપલબ્ધિ, સાહિત્ય હોવું અને એના માટેની ઉદારતા આ બધું જ અહીંયા જોવા મળે છે। આજે જેટલા પણ સંશોધન પુસ્તકો બહાર પડ્યા છે એ મોટાભાગના પુસ્તકોની અંદર કૈલાસ સાગર શ્રી જ્ઞાન મંદિરનો ઉલ્લેખ, આભાર, સહ ઉલ્લેખ જોવા મળશે। આચાર્ય અજય સાગર શ્રી મહારાજ સાહેબનું આ જ્ઞાન મંદિર ઉપર ખાસ કરીને માર્ગદર્શન રહ્યું છે। એમના માર્ગદર્શનની અંદર એક વિશિષ્ટ સોફ્ટવેર પણ ડેવલપ કરેલો છે લાઇબ્રેરીનો, જેની અંદર દરેક પુસ્તક હસ્તપ્રતની ઝીણામાં ઝીણી ડિટેલ ભરવામાં આવે છે। 70-80 જેટલા ફિલ્ડો ભરાય છે। જેટલા ફિલ્ડો ભરીએ છીએ એટલા જ ફિલ્ડોથી સર્ચ પણ કરી શકાય છે। એટલે કે ગૂગલની જેમ સર્ચિંગ એન્જિન મશીન અહીંયા મૂકવામાં આવેલું છે। વાચકોનો ઘણો બધો સમય અહીંયા બચી જાય છે। જે ભારત ભ્રમણ કરીને અલગ અલગ લાઇબ્રેરીમાં ફરીને જે માહિતી નથી મળતી એ માહિતી અહીંયા આસાનીથી ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે। મતલબ કે ગણતરીની સેકન્ડો મિનિટોમાં જ એ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। માની લો કે કોઈ કૃતિનું આપની પાસે આદિવાક્ય ખ્યાલ છે અથવા અંતિમ વાક્ય અથવા તો ગ્રંથનું નામ કે ગ્રંથકારનું નામ, કોઈ 1 યા 2 વસ્તુ યાદ છે તો એના આધારે આખી ટોટલી ડિટેલ કાઢીને આપી દેવામાં આવે છે। કોઈ કર્તાનો વિવરણ જોઈતું હોય તો એના કર્તાના ગુરુ, દાદાગુરુ, પરદાદા ગુરુ કોણ હતા એ આખી ડિટેલ અહીંયાથી મળી જાય છે। શ્રાવકો હોય કે લૈયાઓ હોય કે વિદ્વાનો હોય એમના પિતા, દાદા, પરદાદા વગેરેની ડિટેલ પણ અહીંયાથી મળી જતી હોય છે। ઘણું સંકલન અહીંયા કરેલું છે। ભારતીય પ્રાચીન સાહિત્ય, કળાનો ઇતિહાસ એને જાણવા માટેની આ એક દુર્લભ જગ્યા, અમૂલ્ય જગ્યા કહી શકાય। આચાર્ય પદ્મસાગર શ્રી મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદ, અજય સાગર શ્રી મહારાજ સાહેબના માર્ગદર્શનથી અમે લોકો લગભગ બને તેટલી સેવા આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ। અહીંયા 50 જેટલા પંડિત મિત્રો જે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અર્ધમાગધી વગેરે ભાષાઓ અને અલગ અલગ લિપિઓ, દેવનાગરી, લિપિ, બ્રાહ્મી, શારદા, અલગ અલગ લિપિઓના જ્ઞાતા ઘણા બધા પંડિતો, વિદ્વાનો અત્રે કાર્ય કરી રહ્યા છે। કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે એક શ્રુત ધરોહરને સંભાળવાનું, સાચવવાનું અને વિદ્વાનો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવાનું એક સેવાનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે અત્રે।
અહીંયા જે બી સાહિત્ય અમારી પાસે આવે છે એ સાહિત્યની સૌથી પહેલાં લેબમાં ટ્રીટમેન્ટ થાય છે. જીર્ણ શીર્ણ હોય તો એને યોગ્ય રીતે અમે લોકો એનો રંગભાવ કરીએ છીએ અને એને બર્માટિક સાગના લાકડાથી બનેલા કબાટોની અંદર યોગ્ય કેમિકલ અને આયુર્વેદિક વનસ્પતિઓ સાથે એને અમે સુરક્ષિત રીતે મૂકીએ છીએ. આ જ્ઞાન ભંડારનો જે સ્ટોરેજ છે એ પણ જોવા જેવો છે कि कई रीते ज्ञान भंडार में सामग्री रखवामां आवे छे. तो आइए मैं आपको स्टोरेज भी दिखाता हूँ. अहियाँ जो भी साहित्य आता है उस साहित्य की सुरक्षा जल, अग्नि, वायु, जीव जंतु से हो, इसके लिए हम लोगों ने बर्माटिक साग की लकड़ी के कबाट बनवाए हैं. ये 3 सीजन किए हुए लकड़ी हैं जो सर्दी गर्मी किसी भी ऋतु में ये सिकुड़ता नहीं है, फैलता भी नहीं है, एज इट इज रहता है. और यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रकार से ग्रंथों को रखा हुआ है. इसके बीच में आयुर्वेदिक औषधियों की वो रखी हुई है. फिर कुछ एक केमिकल भी हमने रखे हुए हैं ताकि इसकी गंध से, खुशबू से कोई जीव जंतु कीटाणु ना आए और भीज भी ना लगे. ये सारे ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं जो 500-700 वर्ष, 1000 वर्ष प्राचीन भी होते हैं. और इस प्रकार से ये बंधन करके रखा जाता है. ताड़पत्र मतलब कि ताड़ का पेड़ होता है, उसके पत्ते पे लिखा जाता था. वाह, यानी ये जो लकड़ा है, हाँ, ये बर्माटिक साग का है. 3 सीजन किया हुआ लकड़ा है. अच्छा. और इसकी जो बनावट इस प्रकार से की हुई है, मेल फीमेल, तो ये पूरा बंद हो जाता है, हवा चुस्त हो जाता है. nice. और उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का ये कवर लगा हुआ है. वेरी गुड. देखिए इस साइड है हस्तप्रतें रखी हुई है हमने. कम जगह में ज़्यादा हस्तप्रतें आ सके इसके लिए हम लोगों ने साइजिंग करके रखा हुआ है. वाह. ये सारी हस्तप्रतें हैं. हस्तप्रतें हैं. कोई 16वीं सदी की है, 15वीं सदी की है, 14वीं सदी की भी हमारे पास हस्तप्रतें हैं. ये हाथों से लिखा हुआ है. इतना सुंदर लिखावट है, कोई फुटपट्टी का उपयोग नहीं किया है, हाथ से बिल्कुल छपे हुए अक्षर हो ऐसे लग रहा है. प्रिंटेड के तरह दिख रहा है लेकिन ये हाथों से लिखा हुआ है. ये कागज़ भी हैंडमेड है, इसकी शाही भी उन लोगों ने हाथों से बनाई हुई है, कोई केमिकल नहीं है इसमें. कितने साल पुराना है ये? लगभग 400 साल पुराना है. अच्छा जी. आज के कागज मील पेपर तो येलो हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन पुराने 400-500 साल पहले के कागज को कुछ भी नहीं होता है, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं. वाह. कुछ एक प्रतें तो प्रिंटेड भी होती है, चित्र दोरे हुए होते हैं इसमें. अच्छा. वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. जी. बंद भी कर सकते हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ इसको मूव करके हम ओपन कर सकते हैं. अरे वाह. तो ये क्या है कि कम जगह में ज़्यादा साहित्य आ सकता है. वेरी नाइस. इसका आइडिया कैसे लिया और कहाँ से, मतलब किसी कोई लाइब्रेरी से या यूनिवर्सिटी से? ये हमारे गुरु भगवंत ने ये सब घूम घूम के जहाँ अच्छा लगा वहाँ से इन्होंने लिया. कॉम्प्रेस कंपनी को ऑर्डर दे के ये बनवाया है, यहाँ पे ही तैयार करवाया है. और सबसे पहले इस फील्ड में यहाँ बना, उसके बाद अन्य ज्ञान भंडारों में भी बनने लगा है. वेरी नाइस. यानी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. सुरक्षित है. अग्नि, हवा, पानी, जीव जंतु कुछ भी इसको कुछ कर नहीं सकता है, तो पूरा प्रोटेक्शन किया हुआ है. वेरी नाइस. और ये सारा साहित्य हम लोगों ने ज़्यादातर स्कैन हो चुका है और आगे काम चालू भी है. स्कैन डेटा उपलब्ध है. अच्छा, यानी डिजिटाइज हो गया है. किसी को भी चाहिए तो हम उसकी प्रिंट दे सकते हैं, PDF दे सकते हैं, मेल व्हाट्सएप द्वारा, जैसे भी चाहिए वैसे हम ओरिजिनल यहाँ सुरक्षित रहती हैं, उसकी फोटोकॉपी हम देते हैं. और गुरु भगवंत इसका कैसे लाभ ले सकते हैं? गुरु भगवंतों को जब भी आवश्यकता हो तो उनका जो लेटर आता है या रूबरू आता है, कोई आदमी आता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के हम लोग उनको प्रिंट निकाल के दे देते हैं. अच्छा. हाँ जी. और उनकी सुविधा, वो दूर हो, उनको PDF चाहिए तो PDF फॉर्म में हम भेज देते हैं, वहाँ से प्रिंट निकलवा के भी उपयोग कर सकते हैं.
गुरु भगवंतों के लिए सदैव सेवा में उपस्थित हैं। किसी भी संप्रदाय के, समुदाय के, धर्म के कोई भी महात्मा आते हैं तो सबको यहाँ पे पूरी सुविधा दी जाती है और सभी के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। इस संस्था के लिए किसी के मन में कोई मतभेद नहीं है, सब संपूर्ण आदर से देखते हैं और उनके अपनी किताबों में उन्होंने बहुत आदर से उल्लेख किया हुआ होता है। वाह, मैंने सुना है काफ़ी कोबा के यही बारे हमारी में। उपलब्धि है जी, आप वो चित्र वाला बता रहे थे। हाँ, मैं बताता हूँ, आइए। जी। यहाँ जो बेल गुट्टा वगैरह का चित्र बना हुआ है, ये ओरिजिनल कलर है, केमिकल नहीं है, बिना केमिकल के। ये तो एक सैंपल है, ऐसे तो हजारों हस्तप्रतें सचित्र हमारे पास हैं और ये इस प्रत में कहाँ कहाँ पत्रांक में चित्र दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं। कहीं तोता है, बैल है, सर्प है, गणेश जी हैं, अग्नि है, मयूर है, ऐसे ऐसे दुर्लभ पशु पक्षी, विविध पेड़ पौधों के चित्र देखने को मिलते हैं। और ये पत्रांक दिए हुए हैं तो सिंपल पत्रांक नहीं, उसके आसपास कुछ ना कुछ चित्र दिए हुए हैं। अच्छा, यानी वो डेकोरेटिव किया गया है। कई बार तो ऐसे ऐसे दुर्लभ प्राणी, पक्षी और पौधे मिल जाते हैं कि जो आजकल उपलब्ध नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे भी इसमें चित्र मिल जाते हैं कई बार। और इसमें जैसे कि अलग अलग धर्म के हैं सब ग्रंथ, गुरुमुखी है, जैन है, बौद्ध है, वैदिक है। आप ये देखेंगे दुर्गा सप्तशती है, आगे पीछे लिखा हुआ, इतनी बारीक लिखावट की गई है। वैसे रीडेबल है लेकिन इतना बारीक लेखन किया गया है कि मतलब कि कैसे लिखा होगा हम कल्पना कर सकते हैं जी। और यहाँ लिखावट का एक दूसरा प्रकार है। ये पेपर ही है? हाँ, ये पेपर है। अच्छा। हाँ, और यहाँ लिखावट के बीच में पंडित श्री कमल विजय गणिना लिखितम, ये आप पढ़ सकते हैं। बीच में गैप छोड़ छोड़ के इन्होंने अपना नाम लिख दिया है। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। जी, जी, पंडित श्री कमल विजय गणिना लिखितम। ओके, यानी महाराज साहब का नाम है। हाँ, ये महाराज साहब ने अपने हाथों से लिखा हुआ है, इनके अक्षर है ये। गुरु भगवंत भी सुंदर अक्षरों में लिखते थे जी। फिर ये शारदा लिपि है, अलग अलग लिपि के ग्रंथ हैं यहाँ पे जी। ये गुरुमुखी है, गुरु नानक साहब का जो ग्रंथ है उसकी लिपि है। फिर ये ताड़पत्र में नागदमन का चित्र है, ये छोटा ताड़पत्र है, ये अगरपत्र है। फिर ये ताड़पत्र कैसे बांधा जाता था पहले ज़माने में, हाँ। तो उसकी शैली बताई हुई है। इसे निर्ग्रंथ शैली बोलते हैं। कहीं भी गांठ नहीं है इसमें। ओके। हाँ, फिर भी टाइट बांधा हुआ है। अच्छा, गांठ नहीं है? हाँ, बिना गांठ का है ये, फिर भी मजबूत बंधन है। जैन साधु को निर्ग्रंथ बोलते हैं। हाँ, ग्रंथि रहित। ग्रंथि आज रहित। देश की ग्रंथियों से मुक्त। वाह। हाँ, यानी पहले के ज़माने में जैनियों को भी निर्ग्रंथ बोलते थे। निर्ग्रंथ, जैन साधु को निर्ग्रंथ कहा जाता है। अच्छा। राग द्वेष की ग्रंथि रहित, परिग्रह की ग्रंथि रहित हाँ हाँ, होते हैं। ओके। और ज्ञान पंचमी के दिन यहाँ भाविक भक्त दूर दूर से आते हैं। पूरा दिन ज्ञान पूजा का कार्यक्रम चलता रहता है। ज्ञान पंचमी के दिन पूजा करने से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, ज्ञान कर्म का क्षेपसम होता है, ऐसा माना जाता है। और सरस्वती माता की विशेष कृपा होती है, इसलिए ज्ञान पंचमी का एक विशेष अपना महत्व है। पंडित जी, ये कितने साल पहले शुरू हुआ ये मिशन? कितने साल पहले शुरू हुआ था? कैलाश सागर श्री ज्ञान मंदिर जी। 40 साल पहले पद्म सागर श्री महाराज साहब ने भारत भर के 1.5 लाख किलोमीटर का पाद विहार किया, पैदल यात्रा की। उसमें छोटे बड़े गांव नगर सब जगह घूमे और कई जगह पे उपेक्षित साहित्य इन्होंने देखा, क्योंकि आजकल के लोगों को इसकी कोई वैल्यू थी नहीं। छोटे छोटे गाँवों में, राजस्थान में, वैसे तो गुरु भगवान नेपाल तक जाके आए हुए हैं। जहाँ जहाँ उपेक्षित साहित्य था वहाँ सब जगह से एकत्रित कर करके यहाँ पे रखा है। कई जगह से खरीदा भी गया है, करोड़ों रुपए के खर्च से सृष्टिवर्यों ने खरीद के भी दिया है, बड़े बड़े संघों ने भेंट में भी दिया है।
और आज ये इस ज्ञान मंदिर की इतनी ख्याति है कि यहाँ श्रुति ज्ञान को, हस्तप्रतों को बहुत ही बड़े ढंग से सुरक्षित रूप से रखा जाता है। तो दूर दूर से लोग सामने से आके दे जाते हैं कि ये साहित्य पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे रखिए। तो हम जिसका होता है, जिस संघ का, गांव का, व्यक्तिगत व्यक्ति का, तो उसके नाम से हम हमारे पास रखते हैं। 100 साल के बाद भी कोई पूछेगा कि ये प्रत आपके पास कहाँ से आई, तो हम रिकॉर्ड से बता देंगे कि ये आपके दादा परदादा ने ये साहित्य यहाँ रखवाया था, तो उनके नाम से सुरक्षित रहता है। 30 साल पहले एक संघ ने हमको दिया था साहित्य, बालापुर करके कोई है। तो बाद में इनको हुआ कि हमने सुना है कि हमारे पूर्वजों ने, पूर्व ट्रस्टियों ने यहाँ साहित्य दिया है, तो वो लोगों को हुआ कि है कि नहीं, तो चेक करने के लिए आए थे। तो हमने इनको लगभग 1100 जितनी सारी प्रतें डिजिटाइज हुई थी वो भी दिखा दी, ओरिजिनल दिखा दी, और उनके नाम से ही है। तो उनको इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि 30 साल बाद भी हमको जवाब मिल रहा है, हमारा साहित्य यहाँ सुरक्षित है। हमने बोला कि आपको PDF चाहिए, हम आपको दे देते हैं, आप बताइए क्या आपकी इच्छा है। तो उन्होंने स्कैन कॉपी लेके गए PDF में कि ओरिजिनल इधर सुरक्षित है, हम इतनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, हमारा साहित्य सुरक्षित है। ये उद्गार लोगों के होते हैं, ये एक खुशबू फैली हुई है समाज में, तभी जाके आज हजारों की संख्या में लोग सामने से देखे जाते हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको इसी बात पे पूछना चाहता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस वल्लभीपुर है। वल्लभीपुर जी, अद्भुत। हाँ वल्लभी तो बहुत ऐतिहासिक जी। नगरी है इसके और लिए। हमारे यहाँ से पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने आई थिंक 35 या 40 साल पहले हमारे ज्ञान भंडार से भी हमने बहुत कुछ दिया है, तो उसकी यहाँ पर क्या व्यवस्था है? वो साहित्य भी आपने जो दिया होगा वो यहाँ सुरक्षित हमारे कबाट में रहे होंगे, उसकी एंट्री भी यहाँ पे की होगी, क्योंकि वल्लभीपुर जैन संघ की ओर से मतलब 100, 200, 500 जो भी हस्तप्रतें प्राप्त हुई होगी, उसका रिकॉर्ड आपको कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगा, उसकी स्कैन कॉपी भी मिल जाएगी। स्कैन हुआ होगा तो पहले का दिया हुआ है तो स्कैन हो ही गया होगा, नहीं हुआ हो तो वो प्रोसेस में चल ही रहा है। वेरी नाइस। मतलब वल्लभी तो ऐतिहासिक नगरी थी। जी जी, जेवर्दी गणिक समाज श्रमण ने बिल्कुल भगवान महावीर की निर्वाण से 980 साल 80 या मतांतर में 93 वर्ष में साहित्य लेखन करवाया था। जी जी जी।
ये हमारी सॉर्टिंग प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। साहित्य बाहर से आता है तो सबसे पहले उसका सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग में समान पन्ने अक्षर लिखावट विषय के आधार से सॉर्टिंग करते हैं। लिखावट के आधार से सेमी पंडित लोग नीचे सॉर्टिंग करते हैं और यहाँ पे संस्कृत प्राकृत विविध लिपियों के ज्ञाता पंडित लोग विषय के अनुसार से सॉर्टिंग करते हैं। क्योंकि जो बाहर से साहित्य आता है वो सब मिक्स होता है और मिक्स साहित्य में से पन्नों को निकाल के अपने अपने ग्रंथ में मिलाना पड़ता है, तब जाके एक ग्रंथ संपूर्ण होता है। तो यहाँ ये सारे पन्नों को हम पहले बिछा देते हैं और बिछा के फिर कौन सा पन्ना किसके साथ मैच हो रहा है उसको मिलाने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारी टीम सॉर्टिंग प्रक्रिया कर रही है और एक समान जो पन्ना होगा उसको उसके साथ मिला लेंगे। ऐसे करते करते मिक्स पन्नों में से कुछ एक ग्रंथ तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर उसकी कंप्यूटर में एंट्री स्कैनिंग प्रक्रिया वगैरह सारी प्रक्रिया चलती है। इनको कैसे पता चलता है कि ये इसी का पन्ना हो सकता है? ये आकार देख लेते हैं, पार्श्व रेखा होती है, जैसे कि इसमें पार्श्व रेखा नहीं है, इसमें पार्श्व रेखा है, लकीर है, तो ये इसके साथ मैच होगा ही नहीं जी, क्योंकि ये अलग है, इसकी लिखावट अलग है, इसकी लिखावट अलग है, इसमें लाइनें कितनी, इसमें लाइनें कितनी है। मान लो कि कभी एक जैसा भी ग्रंथ आ जाता है, जैसे कि इसमें नहीं है पार्श्व रेखा, इसमें भी नहीं है, तो लेकिन उसके बाद फिर पंडित लोग विषय को पढ़ते हैं कि ये आयुर्वेद है, ज्योतिष है, वेद है, पुराण है, कल्प सूत्र हैं, आचारण सूत्र हैं, क्या है वो पढ़ के फिर उस पन्ने को अपने ग्रंथ के साथ मिलाते हैं। लिपि का ज्ञान और विषय का ज्ञान इसके लिए बहुत जरूरी है। ये पंडित जी को मतलब लिपि का विज्ञान है? हाँ, ये हमारे सीनियर पंडित जी हैं जी। और ये सभी पढ़े लिखे हैं और लिपि और विविध भाषाओं के ज्ञाता हैं। जैसे ये हमारे अदिति बा गोहिल है, ये भी सॉर्टिंग कर रही हैं। इन्होंने 1 साल पहले ज्वाइनिंग किया है, इनको भी सिखा दिया गया है सब सारी प्रक्रिया। वैसे क्या है कि यहाँ 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ओके। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कार्यकर्ता इसके योग्य बनता है। और ये ट्रेनिंग कौन देता है? और दूसरे पंडित जी? हमारे यहाँ जो सीनियर पंडित जी लोग होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि ये संजय कुमार झा हैं पंडित जी, यहाँ लगभग 30 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो विविध लिपि भाषा वगैरह की ज्ञाता हैं, ट्रेनिंग भी वही देते हैं। वैसे और भी बहुत सारे पंडित हैं जो अलग अलग भाषा विषय के निष्णात हैं, वो एक दूसरे को ट्रेनिंग देते रहते हैं। यहाँ ट्रेनिंग के लिए क्या मतलब होना आवश्यक है? और बेसिक जानकारी, हाँ, संस्कृत प्राकृत की बेसिक जानकारी चाहिए। ओके। लिपि की जानकारी नहीं है तो हम दे देते हैं। और उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो खास करके सीखना पड़ता है। अच्छा। लाइब्रेरी कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो हमने काफ़ी मेहनत करके 30 साल से अभी भी वो अपडेट होता ही जा रहा है। कर्मचारी सुझाव देते हैं कि ये सुविधा ऐड करने जैसी है, तो हम अपडेट करते जाते हैं। तो उसको सीखने में ही 3-4 महीने लग जाते हैं। अच्छा। कि कैसे काम करता है ये लाइब्रेरी प्रोग्राम। फिर 3-4 महीने 6 महीने के बाद कर्मचारी की गति आती है काम में। यहाँ कौन ऐसे मतलब रुचि रखने वाला आता है और उनको क्या यहाँ कोई वेतन वगैरह दिया जाता है या क्या, कैसा? हम लोग विज्ञापन भी देते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों से विविध कोर्स किए हुए लोगों के लिए पेपर में ऐड देते हैं। हम स्वयं ऐसे सेमिनारों में भाग लेते हैं। जैसे पिछले 2 साल से हम जॉब फेयर में जा रहे हैं सोमनाथ यूनिवर्सिटी में, तो जहाँ भी जॉब फेयर लगता है, जैसे अभी शुरू हुआ है इस लाइन के जॉब फेयर लगने भी, और उसमें हम भाग लेते हैं, प्रेरित करते हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग से मतलब 15-20 हज़ार से लेके 50-60-80 हज़ार तक भी हम देते हैं सैलरी, जिसकी जितनी योग्यता। पैसे का यहाँ कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गुणवत्ता, ज्ञान, अभिरुचि और कार्य के प्रति लगाव, निष्ठा होना जरूरी है जी। तो आप जितना चाहो उतना यहाँ से पा सकते हो। आपका नाम? अदिति बा गोहिल। अदिति बा गोहिल। आप राजपूत है? हाँ। कहाँ से है? भावनगर से। भावनगर से? हाँ। प्रॉपर भावनगर या आजू बाजू कहीं से? नहीं, प्रॉपर भावनगर। प्रॉपर भावनगर ना था? ओके।
इस विषय में कैसे मतलब आपको रुचि हुई और आप कैसे यहाँ पर आए? हमारे कॉलेज में 7 डे वर्कशॉप होता है भारतीय प्राचीन लेखन कला के ऊपर। वहाँ पे विविध लिपियों का ज्ञान हमें करवाया जाता है। उस दिन 7 दिनों में हमें ये सब लिपियों का, शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि इत्यादि का नॉलेज देते हैं। फिर वहाँ से हमने ये सीखा था और यहाँ पे ये कार्यशाला होती है तो वहाँ पे 1 दिवसीय पर्यटन भी होता है। तो हम यहाँ पे कोबा ज्ञान मंदिर में आए थे पर्यटन के लिए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे इस तरीके के काम होता है तो फिर वहाँ से हमें प्राप्त हुआ। फिर हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए और फिर यहाँ पे ज्वाइन हुए। आपको अच्छा लगता है ये हाँ, सब? बहुत अच्छा। अच्छा, आप इसमें मतलब आपको क्या अच्छा लगता है ज़्यादा? जैसे कि अभी तो हम कैटलॉग का भी काम कर रहे हैं, संपादन का जी। रिसर्च वर्क। उसमें से जैसे अलग अलग लिपियों का आता है, संशोधन करके किस विषय का है, क्या मतलब उसकी विशेषताएं रहती है। जैसे हस्तप्रतों में अलग अलग तरीके से जो पाठ होते हैं, 5 पाठ, 3 पाठ इत्यादि का देख के मतलब अच्छा लगता है वो करके फिर संपादन। आपने पहले कभी जैनिज्म के बारे में कभी सुना था या पहले- पढ़ा था? हाँ, पहले तो इतना हमारा जो अभ्यास रहा है वो तो वैदिक से ही है, पर यहाँ पे आने के बाद हमें अच्छा ज्ञान मिला। मेरा नाम संजय कुमार झा जी। और पंडित से पंकज कुमार शर्मा जी हैं। हम दोनों डिपार्टमेंटल हेड हैं यहाँ के। और हस्तक प्रक्रिया के बारे में आप जैसा कि देखें कि ये पन्ने कोई और जगह पे थे, यहाँ पे थे और ये यहाँ पे थे। तो सर्वप्रथम इसके लिखावट को हम देखते हैं, फिर भाषा को देखते हैं, इनके लक्षण को देखते हैं कि यहाँ पर पार्श्व रेखा नहीं है, पत्रांक दिया हुआ है, भाषा है। तो ये दोनों देखते देखते एक समान से लग रहे हैं। इन दोनों की लिखावट एक से लग रही है। यहाँ पर 59 पेज है, पत्रांक 59 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं 60। इसके साथ ऐसे मिलाते हैं तो दोनों एक समान लग रहा है जी। तो बिखरे हुए पन्ने थे, इनको हम पाठ मिला करके लक्षण से इनको देख करके अब 59, 59, 60 इसके बाद और इसको हो सकता है किसी और ग्रंथ का भी पन्ना हो सकता है तो हम इसको पाठ मिला देते हैं। जी। फलम तदैव भगवान प्रयक्षति यदाखिला, संस्कृत श्लोक है। जी। अत्यंतम ताप मायांति नोचित स्वाद फलं नहीं। तो ये पाठ और ये पाठ दोनों अनुसंधान का पाठ है, मतलब ये दोनों ग्रंथ एक ही है। और इस तरह यहाँ देखते देखते निबंध रत्नावली नाम की पुस्तक है और 67 इसके कुल पेज हुए और यहाँ पर ग्रंथ पूरा हो जाता है। ये कैसे पूरा हुआ? अंत में इसकी प्रतिलेखन पुस्तिका होती है। इति श्री वल्लभ दीक्षित विरचिते त्वदीये भागवते 12 प्रकरणम संपूर्णम। लेखकर्ता भट्टोपनामक जयशंकरो जागेश्वर विपश्चितेन। तो लहिया जो है सो जागेश्वर हो गए और वल्लभ दीक्षित ने ये निबंध इसके ऊपर बनाया है। इस तरह से ये ग्रंथ जाकर के संपूर्ण हो जाता है। अच्छा, यानी आप इस प्रकार से मिलाते हैं? सारी प्रक्रिया करते हैं। वो पंडित जी जो भी मिला रहे हैं पंकज जी, तो वहाँ देखिए पार्श्व रेखा काली लिटी, लाल लिटी, काली लिटी, पार्श्व रेखा के बिना सुंदर डिजाइन और किस वर्ष की लिखी हुई होती है। लिखावट से भी हम लोग जान जाते हैं कि किस वर्ष की लिखी हुई प्रत है, क्योंकि उनका जो अक्षर का उठाव होता है, लेखन का जो प्रकार होता है, उससे पता चल जाता है कि ये 18वीं सदी है, ये 20वीं सदी है, ये 19वीं सदी है। ये हम लोग देखते ही पहचान जाते हैं, वर्ष लिखा हो या नहीं हो। यानी आपका इतना एक्सपीरियंस है? इसमें 30 वर्षों का अनुभव है। अभी तक हमारे हाथ से 45 से 50 जितने कार्यकर्ता ये तैयार हो चुके हैं, जो यहाँ के काम करने के बाद दूसरे जगह जाकर भी अपनी वो भूमिका निभाते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी हम जा कर के ये लिपि का प्रशिक्षण देते हैं। साधु साध्वी जी को भी देते हैं और साधु साध्वी जी, आचार्य भगवान सभी यहाँ आकर के इन ग्रंथों के अंतर्गत जो अप्रकाशित कृतियाँ होती है उसको वो पाते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। अनपब्लिश्ड मैटर को पब्लिश करने के लिए हमारा हस्तप्रत जो है अहम भूमिका निभाता है। आपने ये सब लिपि का ज्ञान कहाँ से सीखा? मैं एलडी इंडोलॉजी के अंतर्गत
लक्ष्मण भाई भोजक, श्री लक्ष्मण भाई भोजक से हमने सीखा। खंबात। नहीं, वो रहते थे एल डी इंडोलॉजी अहमदाबाद में, गुजरात यूनिवर्सिटी के ठीक सामने, अच्छा। वहाँ हमने सीखा और भी कई जगह सेमिनार में ये सब जानकारी ली। फिर यहाँ आने के बाद इसका गहन अध्ययन किया। मैं व्याकरण से आचार्य किया हूँ दरभंगा यूनिवर्सिटी बिहार से, और यहाँ 30 वर्षों से कार्यरत हूँ। और हमारे मित्र वर्ग हैं, इनकी ये सभी निष्णात हैं अपने अपने विषयों में। जैसे कि ये ज्योतिष से आचार्य किए हुए हैं, मैं व्याकरण से आचार्य किया हूँ। ये बेन जो है ये साहित्य से, लिटरेचर से एम.ए. की हुई है। और गजेंद्र जी हैं, वो भी अपने विषय में जर्नलिज्म में वो निष्णात है। वो लैब के अंतर्गत तो बहन है। सभी अपने अपने विषय के यहाँ पर निष्णात होते हैं। हम बाहर से आने वाले लोगों को गाइड भी करते हैं कि उनका संशोधन के लिए कौन सा ग्रंथ उपयुक्त होगा। हाँ, वो पंडित जी ने भी मुझे बताया हाँ। कि बाहर से कोई भी किसी भी धर्म के या कोई भी आता है, हाँ, जो भी स्कॉलर आता है या कोई भी आता है तो उसको यहाँ पूरी पूरी सहायता यहाँ पर करते मिलती हैं। है, जी। सहयोग मिलता है। यहाँ से लोग यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। जी जी। विदेश से भी स्कॉलर लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा। हाँ, वो मतलब उनके साथ इंटरप्रेटर होते हैं, दुभाषी होते हैं। वो हिंदी भाषा में अपना अनुवाद करके हम लोगों से जान करके उनको जानकारी देते हैं। और हम ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, पत्र के द्वारा, चाहे जिस किसी भी रूप से उनका रिक्वायरमेंट पत्र आता है, रिक्वेस्ट लेटर के हमें अमुक चीज़ चाहिए, 3 दिन के अंदर में हमारे पास यदि वस्तु है तो उनको हम ईमेल के द्वारा विदेश में भी भेजते हैं। साधु भगवान को तो निःशुल्क देते हैं। रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी कॉलेज, गुजरात यूनिवर्सिटी, बसंत भाई भट्ट हुए, और भी इधर जो है यहाँ पर ये ललित भाई पटेल हुए सोमनाथ यूनिवर्सिटी में। ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिनको हम हस्तक की सुविधा यहाँ से प्रदान करते हैं। आज तक का आपका इस विषय को लेकर के और यहाँ आपका कोई यादगार ऐसा अनुभव रहा हो? इसमें यादगार का तो एक उत्सव जैसा अनुभव होता है कि मैं अपना तन मन और समर्पण पूरा हस्तपद के लिए किया हूँ। क्योंकि इन हस्तपदों में मैं माता सरस्वती को देखता हूँ। जम्बू बिरे जी महाराज साहब जो ख्याति प्राप्त 17 भाषाओं के विद्वान थे, परम पूज्य अजय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उनका परिचय करवाया। वो पूरे भारत में घूम गए, कहीं भी उनको त्रिशती नाम का ग्रंथ नहीं मिला था। जो स्थानांक सूत्र, जो तृतीय आगम सूत्र है, और उसमें एक संदर्भ के लिए उनको एक पुस्तक की जरूरत थी, कहीं नहीं मिला। वो यहाँ से मिला। जब उनको मैं बताया तो इतने गदगद हो गए, निहाल हो गए, और गुजराती में सहज ही बोल के ना होए आ तो क्या जरे ज नहीं, कई रीते मानी सके थे। तो मैं उनको 3 प्रतियां कोवासिन को दी तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। और उनका जो मुश्किल संपादन था वह जो है सो सरल हो गया। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और हृदय से पूरा। लगभग उनके पास विदेशी स्कॉलर भी आते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं महीना भर पहले, तब जाकर उनको नंबर मिलता है। और ज्ञान मंदिर में वो 2-3 दिनों के लिए आए थे, कुछ समय के लिए, जो सप्ताह भर से ऊपर यहाँ रह के गए, और पूरा खुशहाल होकर के यहाँ से लाभान्वित होकर के गए। बोले कि कोबा ज्ञान मंदिर जो है शासन की एक धरोहर है, और शासन की सेवा के लिए कोबा का जो योगदान है अविस्मरणीय है। पूरा स्कॉलर जो है इसके लिए चिरऋणी रहेगा। जितने भी विद्वत जगत के लोग हैं, कोबा के लिए हमेशा के लिए चिरऋणी बना रहेगा। धन्यवाद। स्वागत। मैं ज्ञान सेवक हूँ, जहाँ ज्ञान की सेवा करता हूँ। गुरु भगवान के आशीर्वाद हैं। थोड़ा बहुत जैनिज्म का नॉलेज रखता हूँ, और अभी भी अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लगभग 10-12 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। और जैनिज्म रिलेटेड कोई भी विशिष्ट वाचक सेवा हो और जैनिज्म का ट्रेनिंग देनी हो तो वो सब मैं संभालता हूँ। और कठिन मुश्किल कोई प्रश्न हो हस्तप्रतों का कार्य में, कहीं कोई पंडित या कार्यकर्ता रुकता है तो लास्ट में क्रिटिकल क्वेरी का निराकरण करता हूँ मैं। ये हमारी लैब है जी। और लेबोरेटरी में साहित्य हमारे पास आता है, तो अलग अलग कंडीशन में हमारे पास साहित्य आता है। हम लोग उसको रखते हैं, तो टूटे फूटे पन्ने होते हैं, आगे पीछे पन्ने होते हैं, जीर्ण शीर्ण होते हैं,
तो उसको लाके फिर ठीक करने का काम यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि ये परत है, ये प्लाई नुमा हो गई है, बिल्कुल चिपके हुए पन्ने हैं और इतना मतलब प्लाई हो गया है कि ये यदि किसी को सर पे लग जाए तो खून निकल जाए, इतना ये मजबूत स्ट्रॉन्ग हो गया है। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि अब ये तो बिल्कुल निकम्मा है और इसको तो विसर्जित कर ही देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, ऐसी जनरल पब्लिक की सोच रहती है। लेकिन हम लोग इसको भी न्याय देते हैं। किस प्रकार से इसकी सारी प्रक्रिया होती है, ये लेबोरेटरी में अक्सरों पन्नों के ऊपर क्या क्या प्रक्रिया करके किस प्रकार पन्नों को खोला जाता है, उसको दीर्घायु किया जाता है, वो सारा आपको पंकज शर्मा पंडित जी बताएंगे। ये हमारे लैब टेक्नीशियन हैं और ये लेबोरेटरी संभालते हैं। अच्छा मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है। जी। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ओके। यहाँ पर हम पिछले 2016 से हम यहाँ पर ज्वाइन किया है 2016 से। हस्तक विभाग में हम वैसे काम करते हैं, सीनियर कैटलॉगर के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। उसके साथ में ही एडिशनल एक विषय हमारे सामने आया कि हमारे गुरु भगवंत द्वारा पद्म सागर सूरी जी महाराज साहब द्वारा ये ग्रंथ हमारे लिए लाए जाते हैं। जिस अवस्था में ग्रंथ होते हैं उस अवस्था में हमारे पास जैसा आता है, जो योग्य होते हैं उसको सॉर्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। जो पढ़ने योग्य नहीं है, चिपके हुए ग्रंथ हैं, टूट रहा है, अक्षर टूट रहे हैं, फटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, त्रुटक हैं, पीछे से त्रुटक हैं, साइड से कमज़ोर हो गए हैं, ऊपर से कमज़ोर हो गए हैं, उन पत्रों के उन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के संरक्षण के लिए हमको यहाँ से ट्रेनिंग के लिए 1 महीने के लिए नैनीताल में भेजा गया। नैनीताल में जाकर के हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर के 2019 में हम दोबारा से आए यहाँ पर। तो 2019 के अंतर्गत ही 6 महीने के अंदर हमने इस लैब की स्थापना की। अच्छा। लैब की स्थापना के बाद में जो हमारे पास प्राचीन ग्रंथ जो धरोहर रूप में ये हैं, जो चिपके हुए हैं आदि, जो टूटे फूटे टूटे ग्रंथ हैं, उनको संरक्षण करने के लिए लैब की स्थापना करके हमने ये कार्य शुरू किया। शुरू करने के बाद में हमारे पास ऐसे इस प्रकार के ग्रंथ आते हैं जो चिपके हुए ग्रंथ हैं आपस में। ये क्या है कि प्राचीन समय के अंदर क्या होता था कि पहले मकान कच्चे होते थे, पक्के होते थे, खपरेल के मकान होते थे, उसमें इस प्रकार से उनको रख दिया जाता। तो पानी चोक रहा है, पानी आ रहा है ऊपर से, पानी आने के बाद में फिर क्या भेड़ लग जाता था ना, भेड़ लगने के कारण ये चिपक जाते थे, इसके अंदर गोंद वगैरह होती है, चिपक जाते थे। अब उसको खोला कैसे जाए, हमारा प्रश्न ये हुआ। तो परम पूज्य अजय सागर सूरी जी महाराज साहब की कृपा हमारे ऊपर ऐसी रही कि प्राथमिक लेवल पर हमने एक काम सीखा। ये प्राथमिक लेवल पर जो हमारे पास न्यूज़पेपर होते हैं, उन न्यूज़पेपर को गीला करके और उसमें ये जैसे चिपके हुए पत्र हैं इनको रख दिया जाता है गोल करके। इसके अंदर जो उसकी भेज आती है, इम्यूनिटी आती है, वो अंदर को पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में धीरे धीरे वो पत्र खुलने लगते हैं। हमारे पास एक उसके बाद में जब हमने लैब स्थापना की उसके बाद स्पेचुला एक आया, हमने स्पेचुला को समझा और धीरे धीरे करके हमने वो स्पेचुला से इन पत्रों को अलग अलग करना शुरू कर दिया। जहाँ तक संभव होता है कि हम स्पेचुला से इन ग्रंथों को अलग अलग कर देते हैं। जहाँ असंभव होता है कि भाई ये इससे नहीं खुल पा रहे हैं, उसके बाद में हम दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर केमिकल का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल वगैरह हैं, ऐसे के केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल के प्रयोग के द्वारा केमिकल से है और पानी के दोनों का मिश्रण करके इन ग्रंथों को खोला जाता है। खुलने के बाद में हमको पता चलता है कि इसके अंदर मिट्टी है, धूल है, फिश है, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े इसमें अंदर रह देते हैं। तो उसको ब्रश के द्वारा साफ सफाई किया जाता है। ओके। सफाई करने के बाद में उसको पत्र को सामने लाया जाता है, धीरे धीरे करके सबको खोल देते हैं। अब हमको पता लगता है अगला स्टेप ये होता है हमारा कि भाई इन पत्रों का आगे चल करके दीर्घायु कैसे हो। तो दीर्घायु करने के लिए सबसे पहले हम प्राथमिक लेवल पर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा टूटा ग्रंथ है तो उसके लिए छोटा सा हमारे जो GSM पेपर होता है हमारे पास, GSM पेपर के द्वारा हम जहाँ जहाँ टूटे फूटे ग्रंथ होते हैं उसको चिपका दिया जाता है। ये जैसे GSM पेपर है, इस GSM पेपर के द्वारा जैसे कोई भी पत्र यहाँ से टूटा हुआ है तो थोड़ा बहुत उसको ऐसे इसमें से काट करके चिपका दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि नहीं इससे पार नहीं पड़ेगी, ये आने वाले भविष्य में हमको दीर्घायु उसका और चाहिए, तो इस हम क्या करते हैं कि इसका लाइनिंग किया जाता है।
लाइनिंग के लिए क्या करते हैं, हर एक पन्ने को लेकर के जीएसएम पेपर से दोनों तरफ से आगे पीछे दोनों ओर से उसको चिपका दिया जाता है। सीएमसी एक पाउडर होता है, उसके बाद में सीएमसी से लेकर के पेस्ट बना करके सीएमसी का और जीएसएम पेपर को चिपका दिया जाता है। अच्छा। चिपकाने के बाद में उसको टूटा जहाँ से हमको काटना होता है, फटना होता है, उसको आकार देने के लिए लास्ट में इसको प्रेस करना होता है। उस पर टूटा फूटा जो भी यहाँ से हमको काटना पीटना प्रेस करना, लास्ट में आकर के हमारे पास ऐसा पत्र ये जो टूटे हुए पत्र थे दोनों तरफ से लाइनिंग करने के बाद में हमारे पास ऐसी स्थिति होती है, ऐसा पत्र बन जाता है। अब पहले पत्र ऐसा था, ये जब हमारे पास लाइनिंग नहीं थी इस पेपर की तो इस पत्र को अगर हम ऐसे मोड़ देते तो ये टूट जाता, लेकिन इस लाइनिंग होने के बाद में ऐसे इस पत्र को आप ऐसे आराम से पकड़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी आयु ऐसी 300 वर्ष लाइफ बढ़ जाती है। इस पत्र की आयु 300 वर्ष हो गई है। अब इसको आप कैसे भी करिए, वो टूटना फूटना और आराम से टेक्स्ट को आप बांध सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं इसकी। अच्छा। पढ़ने के बाद में आप ये हमारा ग्रंथ पढ़ने योग्य हो गया। अब ये जैन जगत में हमारे में जो भी साधु महात्मा हमारे पास भगवंत आते हैं, जो भी कार्य करते हैं, संशोधन कार्य करते हैं, तो उसमें काम आता है हमारे लिए विशेष रूप से। इस प्रकार से ये तो हस्तप्रत की बात हुई। उसके बाद में कई प्रकार के हमारे पास ग्रंथ होते हैं, जैसे ये रोल हुआ हमारा, ये टूटा हुआ रोल था पहले, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल टूटा हुआ रोल था। टूटे हुए रोल के पकड़ लो, टूटे हुए रोल होने के बाद में देखिए हमने जीएसएम पेपर से इसको पेस्ट बना करके चिपकाया है। देखिए ये जीएसएम पेपर है, जहाँ पत्र टूटे हुए थे उन टूटों को पाठ मिला करके उन पत्रों को यहाँ पर हमने जगह जगह पर सेट कर दिया है कि भाई इसका पाठ ये है, इसका पाठ इससे आगे ये आएगा, इससे आएगा। इस प्रकार से हमने पूरा इसको सेट कर रोल बना दिया, पूरा गोल बना दिया और पढ़ने योग्य हो गया है, रीडिंग हो गया है। पहले बिल्कुल व्यवस्थित नहीं था ये, अव्यवस्थित रूप से था ये, अब इसको पूरा व्यवस्थित कर और दिया। एक विशेषता ये भी जानने जैसी है, ये जो रोल है वो वंशावली का रोल है। जैसे हमारे दादा परदादा 700-800 साल पुराना इतिहास इसमें से मिल जाता है। देवी गोत्र, अच्छा, पूरी डिटेल ये इसका है। इसका रोल है ये, अच्छा, मतलब उसका वंशावली है पूरी। वंशावली है। जी जी। पूरा इतिहास है। अब उसके बाद अच्छा। में ये पत्र जो आते हैं, देखिए ये जो पत्र आए हैं, अब इसमें देखिए, अब इसमें संभव नहीं है कि इस बात को हम कैसे इसको जोड़ें, जॉइंट कैसे करें, लेकिन इसमें संभव कैसे ऐसा होगा कि हम सब पंडित लोग हैं यहाँ पर, इस भाषा के जानकार हैं जी, प्राकृत संस्कृत के जानकार हैं। पाठ मिला करके इस पत्र को दोनों को, जैसे आप में इसमें आपस में पाठ मिल गया है तो इनको हम आपस में जॉइंट करेंगे, इन पत्रों को पाठ मिला करके। अच्छा, हाँ, पाठ मिलाकर इसको जॉइंट किया जाएगा। जॉइंट करने के बाद में इसके ऊपर जीएसएम पेपर लाया जाएगा, जिससे क्या है एक जगह टिका रहेगा। अच्छा। और इसकी 20-20-50 साल आयु इसकी बढ़ जाए इसकी आराम से। जो बिल्कुल पत्र अलग अलग छूटक हो गए हैं, उन पत्रों को भी हम अपने पढ़ने, अपने जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से उसको पढ़ करके उसको मिलाया जाता है और मिला करके उसको न्याय दिया जाता है, जिससे अपने भविष्य में काम में आए। इस प्रकार का यहाँ पर काम होता है। उससे बाहर निकालते हैं पत्र को। ये भी चिप्पी है, ये इस पर चूल्हा है, ये बड़ी ब्रश है, ये इससे भी बड़ी ब्रश है जिसमें बहुत ज़्यादा फिश वगैरह ऐसी होती हैं, तो इसको इससे साफ़ किया जाता है। हल्का ब्रश का प्रयोग इससे भी किया जाता है। ये नाइफ है, इसके कोई कुछ काटना हो उनको यहाँ से ये तो है। और ये पीएच लेवल टेस्ट करने का है। प्रत का आकार क्या है, प्रत के अंदर कितना पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो चेक करने के लिए हमको जाता है, क्योंकि उसके आधार पर ये फैसला लेते हैं। किया जाए। इसके ये जब तक हम इसका टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस पर कोई ऑब्जेक्ट पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। जब हम पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये स्थिति है तो उसके अनुसार हमको निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार से हमने हस्ताक्षर रखे हैं। आपने नैनीताल में क्या ट्रेनिंग ली, यानी नैनीताल में क्यों? नैनीताल में हमारे पास एनएमएम से एक यहाँ पर उनके डायरेक्टर आए थे, हाँ प्रताप चंद्र जी। बिहार के रहने वाले थे वो। तो उन्होंने बोला, वो आ करके हमारे यहाँ पर खुश हो गए कि भाई आपके यहाँ तो साहित्य बहुत बड़ा है, अच्छा साहित्य है, तो आपको तो जो हमारे हमने जो साहित्य ये दिखाया, प्राचीन साहित्य दिखाया उनको, टूटा हुआ जो ये चिपका हुआ, बोला ऐसा काम तो हमारे यहाँ, ऐसी हमारी संस्थाएं वो बहुत करती हैं। तो उन्होंने बताया कि नैनीताल में एक वर्कशॉप हो रहा है 1 महीने का, अच्छा। आप उसमें जाइए और हस्तप्रत संरक्षण की ट्रेनिंग लेकर आइए, तब आप ये काम कर सकते हैं। तो वहाँ से हमको वो पता चला। उसके बाद में उन्होंने हमको मेल पर ये दी सूचना कि भाई हमारे ऐसा हो रहा है, तो हमारी संस्था ने मेरे को नियुक्त किया कि भाई आप जाइए वहाँ पर, आप ट्रेनिंग लेके आइए। आप वर्कशॉप में गए थे? जी। मतलब क्या था वहाँ, कितने लोग आए हुए थे? करीब 22 लोग आए हुए थे वहाँ से। कहाँ और सभी पूरे भारतवर्ष से आए थे। अच्छा। केरल से, पंजाब से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से,
उत्तराखंड से, उत्तरांचल, ये सभी जगह से हम वहाँ पर विद्यार्थी आए थे। अच्छा। और विद्यार्थी मतलब जो इस काम से जुड़े हुए हैं, वो लोग ही आए थे, और उन्होंने पूरा आने का, जाने का, खाने पीने का सब टी हमारे लिए पूरा दिया था उन्होंने, उनकी ओर से दिया था। और ये केमिकल्स वगैरह हैं, ये जी। हमारे केमिकल्स हैं, एसीटोन है, ये जो उसके ऊपर जो प्रत के ऊपर टेप वगैरह होती है उसको खोलने के लिए काम आता है। अच्छा। फिनार प्रोपेन, फिनार मेथनॉल, इसको ये भी जो हमारे ये केमिकल हैं, ये खोलने के लिए, पत्थर को खोलने के लिए काम आते हैं। अच्छा। ये CMC है, ये चिपकाने का काम आता Very है। nice. ये क्रिस्टल है, ये भी हमारे उसमें जो काम करना होता है हमको, तो इसके अंदर CMC के अंदर भी इसको हमको डाला जाता है। क्रिस्टल भी काम में आता है। क्रिस्टल भी काम आता है। और ये CMC पाउडर, मैदा पाउडर है। तो इसमें क्या होता है कि मैदा पाउडर हम इसलिए रखते हैं कि जैसे कोई ग्रंथ, ये CMC पाउडर थोड़ा महंगा आता है, हाँ। तो मैदा पाउडर से भी हमें क्रिया करके और उसको पेस्ट बना सकते हैं मैदा पाउडर। अच्छा। और मैदा पाउडर से भी ये काम होता है। वेरी नाइस। ये बहनें ये काम करती हैं, ये इसका काम करती हैं, ताड़ पत्र का काम करती हैं। Okay. ये चंद्र का नाम है इनका, चंद्र का हाँ। युवक। ये साफ सफाई करती है। इसके अंदर देखो कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, देखिए हाँ। ये टूट के यहाँ से कुतर लिया है, हाँ। चूहा वगैरह इन्होंने कुतर लिया है। हाँ। तो ये सब क्या है, इसकी साफ सफाई होती है पूरी। तो ये अच्छा। साफ सफाई का काम ये बहन करती हैं। उसके बाद में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या नहीं होगा, उसका निर्णय हम बाद में करेंगे। अभी कि भाई अच्छा। ट्रीटमेंट क्या इसका योग्य है, क्या करना आप चाहिए। देखेंगे ना तो बहुत सारे छिद्र हैं। यहाँ से आप लेंगे ना तो इसमें भी कितने छिद्र दिख रहे हैं, देखिए। हाँ, ये नहीं, ये घूर्ण, दिमाग वगैरह। देखिए, ये आप देखिए, अब इस, हाँ देखिए कितने छेद कर दिए, खा के मिट्टी कर चूहे करके। वगैरह ने खा कितना छेद कर दिया। मान लो कि इधर हमने आपको दिखाने के लिए रखा, नीचे देखिए कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। ये सब हाँ। जीव जंतु ने खा के इसका ये हालत कर दिया है। अगर इसको हम दोबारा खोलेंगे, दोबारा इतनी साफ सफाई कर दो, फिर दोबारा हो जाएगा ऐसा ही। इसको कैसे करते हैं आप? ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि या कर एक बार एक ट्रीटमेंट हुआ इसका। हाँ। पहले तो फर्स्ट जो इन्होंने किया है वो ब्रश से किया है पूरा। अच्छा। ब्रश से करने के बाद में इसका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा। ट्रीटमेंट होने के बाद में जब इसको बांध दिया जाएगा इसी प्रकार से, हाँ। तब ये डाइक्लोरो व्यंजन आता है, वो नीचे रखा हुआ है हमारे। उसके अंदर जो हमारी कुछ वस्तुएं होती है, औषध वगैरह, उसको पीस करके एक पोटली में बांध दिया जाता है। उसको इसमें ऊपर रख देंगे, ये ऐसी पोटली होती है, उसको ऐसे रख देंगे। इससे जीव जंतु जीवाणु बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, वो हमारे पहले के जमाने में महाराज साहब वगैरह सब जी, ये जी, पोटली रखते थे। जी, गोले, सांप के केचड़ी, कपूर, ताज, लविंग, वज वगैरह सब रखते जी, थे। घोड़ा घोड़ा मच वगैरह ये सब चीजें। जी। जैसे ऐसे कुछ एक टुकड़े भी हैं, तो किस पन्ने का टुकड़ा है उसको भी पढ़ के जोड़ना पड़ता यानी है। बहुत बारीकी से काम बहुत हाँ, बारीकी बहुत से, और बारीकी से। ये धैर्य से ही काम होता है। जैसे व्यक्ति का ऑपरेशन होता है ना, जी। डॉक्टर जैसे धैर्य से करते हैं, इसी प्रकार से हमको यहाँ पर धैर्य से ऑपरेशन करना पड़ता है इसका। जी, जी। अगर हमको एक पन्ना भी, एक टेक्स्ट भी कट गया, तो हमको क्या पता है उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। हम अपने मन से थोड़ी जोड़ सकते हैं। नहीं। वो तो जो है वो हमको लाना पड़ेगा वहाँ पर, तब जाकर वो होता है व्यवस्था। यहाँ लार्जेस्ट कलेक्शन और सबसे बड़ा जो है सो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का फर्स्ट स्थान मिला है कोबा ज्ञान मंदिर को। की तरफ से जो जारी हुई है सूची, उसके अंदर हमारे पास 52 लाख ऑब्जेक्ट बताए हमारे पास। अच्छा। सबसे रिचेस्ट जो सबसे है बड़ा यही ज्ञान मंदिर है, कलेक्शन मैन्युस्क्रिप्ट ज्ञान मंदिर से। और काम करती है संस्था, ऐसा ये- नहीं केवल रखी नहीं है, नहीं, ये तो दिखता काम ही। करती है और विद्वानों को प्रोवाइड करती है। ये ज्ञान मंदिर परम पूज्य आचार्य श्री अजय सागर सूर्येश्वर जी महाराज साहब की मार्गदर्शन में चलता है। अच्छा। उन्हीं की कृपा है जो ये सब कार्यक्रम, ये हमारा काम होता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही हम काम करते हैं। सबका पत्र आता है रोज के, हमारे पास 15 से 20 पत्र रोज आते ही हैं। वाचक सेवा के लिए सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर महाराज साहब जो होते हैं, हमारे महात्मा जो होते हैं, जो भी संशोधन वर्ग में काम कर रहे हैं, संशोधन क्षेत्र में जितने भी साधु महात्मा काम कर रहे हैं, उन सभी साधु भगवंतों की क्वेरी हमारे पास कोबा ज्ञान भंडार में आती है। वगैरह डिशा, तो उन सभी भंडारों को पद्म सागर सूर्येश्वर जी महाराज साहब जो राष्ट्र संत है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है। उनके बहुत सारे से पहचान के लोग हैं। अजय सागर सूर्येश्वर जी महाराज साहब उन सभी स्थानों से कांटेक्ट करके सभी जगह अपने आदमी को भेज करके डिजिटलाइज का काम करते हैं। 3.5 लाख हस्तप्रतें हमारे पास है। इसके अलावा 40-42 ज्ञान भंडार भारत भर के जो हैं, उनका स्कैन डेटा हमारे पास है। अच्छा। उसका कार्य पालड़ी में हमारी श्राविका बहनें 15-20 जितनी बहनें हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दे रखी है। वो लोग उसका सूचीकरण काम कर रही है।
तो वो भी डेटा वाचकों के लिए, महात्माओं के लिए, रिसर्च स्कॉलरों को लिए हम उपलब्ध करवाते हैं। ये जैन दर्शन और जिसमें भी जैन तत्व के मर्मज्ञ हैं, अरे वाह इनका नाम श्री गजेंद्र शाह जी है। जी, और जैन दर्शन के ये समझिए आप उच्च कोटि के विद्वान माने जाएंगे। वेरी नाइस। इन्होंने कुछ दिन पूर्व ही एक वीर निर्माण से संबंधित एक पुस्तक छापी है, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान था, वाह, बहुत बड़ा योगदान था। अमेरिका के पंकज शाह जी बोस्टन में, तो वहाँ से उनको पूरा उन्होंने अपनी किताब की तैयारी की थी, उसमें सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन इन्होंने दिया है और काम भी किया है। मार्गदर्शन की बात तो अलग चीज़ है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनमें 4-5 महीने के लिए उन्होंने अपने संस्था से भी छुट्टी लेकर के उन्होंने कार्य किया है। अच्छा। ये जैन दर्शन के बहुत अच्छे विद्वान। अजय सागर जी महाराज साहब का निर्देशन मिलता था। हाँ, उनकी कृपा, इनका मार्गदर्शन परम है। पूज्य अजय सागर जी महाराज साहब के निर्देशन में ये सब काम हुआ है। बराबर। दूसरे ये हमारे पंडित संजय कुमार झा जी हैं, जी ये संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार हैं, जी, ये प्राकृत के बहुत अच्छे जानकार हैं, ये संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार हैं। इनके पास जो भी दुर्लभ कृतियाँ जो हमारे पास जो आती हैं, उनको न्याय देने के लिए सबसे अच्छा इनका काम है। वेरी नाइस। और अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं। हमारे अच्छा। सुध सागर छपता है, उस सुध सागर मासिक पत्रिका के अंदर इनके बहुत अच्छे लेख जाते हैं। अच्छा, बहुत संशोधन अवनीत और संशोधन प्रकाशित कृति अवनीत परिचय, ये दो देते हैं। बहुत अच्छे मतलब एक मर्मज्ञ जानकार हैं। और कैटलॉगिंग हमारे पास अब तक 39 कैटलॉग हो गए हैं हमारे, 39 ओके। वॉल्यूम छप चुके हैं। उन 39 वॉल्यूम के अंदर पूरा इन्होंने काम किया है और 39 वॉल्यूम में इनका योगदान रहा है पूरा। इस समय कैटलॉगिंग पद्धति कैसे होती है, क्या होती है, कैटलॉग क्या है, किस प्रकार छपता है, किस प्रकार से प्रतियां उसमें ऐड की जाती हैं, कृति, कर्ता, प्रतिलेखक वगैरह, हस्तप्रत, पेटांक कैसे बनाए जाते हैं, उन सबके मर्मज्ञ इनको जो अनुभव है 30 साल का, बहुत बड़ा अनुभव है। वाह, ये बहन है हमारी चंद्रिका योगट, इनका नाम है। ये हाँ कंप्यूटर से सेक्शन में काम करती हैं। अच्छा। तो कंप्यूटर सेक्शन में ये जो काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम है इनका। और स्कैनिंग वगैरह का डेटा काम, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे बोलते हैं, वो इनका पूरा काम है। उसके बाद में फिर लैब का भी में समय देती हैं। ये लैब में ये ताड़पत्र साफ सफाई करना, जो इनको बोला जाता है कि पत्र चिपके उनको खोलिए आप, तो वो भी खोलती हैं। सब अच्छा ये इनका योगदान है। आप कहाँ से? वाह, ये अदिति बा गोयल हैं, इनके बारे में आपने अभी इंटरव्यू ले ही लिया है। साहब की निसरा में एक मीटिंग रखी गई थी, कार्य वर्कशॉप रखा गया था। उसके बाद गांधीनगर में आचार्य अजय सागर श्री महाराज साहब जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी निसरा में मीटिंग रखी गई। भारत भर के तमाम ज्ञान भंडारों के साथ कोबा का जो है टेक्निकली एक संयोजन समन्वय कर दिया जाए, मतलब सेंट्रलाइज के लिए कोबा अग्रिम भूमिका निभा रहा है। तो भारत के सभी ज्ञान भंडारों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म से साधु महात्माओं, रिसर्च स्कॉलरों को प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। कुछ एक समय में वो भी बाहर आएगा। एक नई बात आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति के पुरोधा ऋषभदेव भगवान जैन, जैनेतर, वैदिक सभी ग्रंथों में जिसका उल्लेख है करवाएं, कुछ एक लेख भी दिए हैं। और भगवान ऋषभदेव भगवान किस प्रकार समस्त भारतवर्ष के पुरोधा थे और भरत चक्रवर्ती उनका पुत्र, उनके नाम से भारत देश का नामकरण हुआ, उसके जैन, जैनेतर, वैदिक पुराणों के काफ़ी रेफरेंस हमने उनको उपलब्ध करवाए थे। पतंजलि योगपीठ, रामदेव बाबा की, उनको भी कई सारी आयुर्वेदिक किताबें हमने दी हैं। जो रिसर्च संशोधन कर रहे हैं वो लोग, सेवा का हमको लाभ सौभाग्य मिलता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।